हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Social differentiation, they are part of the Harappa civilization. The Harappa societies appear to has been to the is a matricals in a nature. The matricial in the nature there is a view is a base on there is a purities of their mother goddess, as indicated by there is a finding of a large number of terracotta female figurines in Punjab and Sindh regions. As a Harappan script has not been to the deciphered till now, and we have to be satisfied ourselves with his limited information on this issue. The Harappa society is comprised of people following diversity of professions. There is a priest, there is a warriors, peasant and traders and the artisans. The masons, weaver, goldsmith and pottery etc. There is structural is a mine at the site such as Harappa and the Lothal show there are different types of building that were used is a residence by different classes. The presence of class of the workman is provided to the workman is a quarter near the galleries at their Harappa. Similarly, their workshop and the house meant for the copper smith and the bed makers has been discovered at the Lothal. In fact, we can say that those who live in the larger houses belong to be the rich class, whereas those live in the barracks like workman quarter were from the class of labor. Our limited knowledge about there is a dress styles come from to the terracotta figurines and the stone is a sculptures of the period. Men are mostly show the wearing a dress wrapped around there is a lower half of the body with one end warm over to left shoulder and under to the right arm. The other is a garment is was a skirt like a dress to cover the lower portion, and they use a cotton and the woolen cloth. A piece of woven is a cloth has been to found at the Monojodharo, spindles and there are needles discovered at the many sites. Attached to be a practice of spinning and the weaving. That is the most important here. The Harappan people is a love to be decorate himself. Here dressing by the both man woman evident from two fingers and found at a different side. The men as well as the women arrange their hair in different style. And the people were also found of the ornament and this is a mainly included a necklace, armlet, earrings, wear and bangle etc. used by the both of sexes, and the rich peoples is appeared to has used to the ornament of gold, silver and semi-precious stone will their poor satisfied themselves there with the loss of terracotta. यदि हम बात करें सामाजिक विशेषताओं की तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है सामाजिक विशेषताएं, ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोगों को समाज जो है माँ संतात्मक प्राकृतिक का था, यानी माता का जो है चलता था। यानी अभी देखा जाए हमारा समाज जो है पितृ है तो यहाँ पर मात्र समातक प्राकृतिक का था, और इस मत का आधार है मातृ देवी की लोकप्रियता, जैसे कि पंजाब और सिंध प्रदेशों में बड़ी संख्या में मिली पक्की मिट्टी के बनी नारी मूर्ति के संकेत से मिलता है। यानी देखा जाए तो माता देवी की मूर्ति जो है इस बात को साक्ष्य है कि उस समय जो मातृ प्रधान समाज हुआ करता था, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के समाज में जो है विविध व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल थे। इसमें पुजारी, योद्धा, किसान, व्यापारी और कारीगर सम्मिलित थे। राजगुड़ और बुनकर, सुनार, कुम्हार इत्यादि भी शामिल थे। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थानों में मिले मकानों के ढांचों से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के लोग द्वारा आवास के लिए विभिन्न प्रकार के भवनों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के कोठार के पास बने कारीगरों के घरों से इस वर्ग के कारीगरों की उपस्थिति संबंध में हमें पुष्टि होती है। और इसी प्रकार लोथल में तांबे का काम करने वाले कारीगरों और मोती बनाने वाले कारीगरों के जो है कार्य
शालाओं और उनके लिए आवासीय घरों के मिले के भी प्रमाण हमें मिले हैं। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि ये लोग बड़े घरों में रहते थे और वो धनी वर्ग से होते थे, जो कारीगरों के जो क्वार्टरों जैसे कोठरियाँ यानी बैरकों में रहते थे और वो मजदूर वर्ग में सम्मिलित थे। उनकी वेशभूषा के ढंग के संबंध में हमारी जो सीमित जानकारी उस काल के दौरान मिली पक्की मिट्टी और पत्थर की बनी महिलाओं की मूर्ति पर आधारित है। यानी हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो हमें मूर्ति मिली है उससे हमें ये पता लग जाता है कि उनका वेशभूषा कैसा रहेगा। कहते पुरुषों को अधिकतर जिस पहनावे में दर्शाया गया है उसमें नीचे के आधे भाग में चारों ओर एक धोती सी बंधी है, जिसका एक सिरा बाएं कंधे और दाएं बाजू के नीचे है और एक अन्य पोशाक है जो चोगे ढीला कपड़ा की तरह जो है परिधान है, जैसे शरीर के निचले भाग को जो है ढका गया है। और वे लोग सूती और ऊनी कपड़े जो उपयोग में लाया करते थे। मनोजधारों में बुनाई किया गया एक कपड़ा मिला है। अनेक स्थानों पर मिली जो है तकलियों और सुइयों से ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय कताई और बुनाई का जो है काफ़ी प्रचलन थी, यानी हमें उसमें कताई बुनाई का भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे चीज़ें बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय उनकी वेशभूषा किस प्रकार की रही होगी। हड़प्पा के लोगों को सजने और संवरने का बहुत ही शौक था और विभिन्न स्थानों पर मिली पुरुषों और महिलाओं की मूर्ति से बाल संवारने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। पुरुष और महिलाएं अपने बाल को अलग अलग तरीके से संवारते थे और ये लोग जो है आभूषण पहनने के भी शौकीन थे। इसमें मुख्य तौर पर स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो है नेकलेस, बाजूबंद, कानों के बूंदे, मोती, मन के चूड़ियाँ इत्यादि शामिल थी। ऐसा लगता है कि धनी लोग सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने गहने पहना करते थे, जबकि निर्धन लोगों को पक्की मिट्टियों के गहने से ही संतुष्ट होना पड़ता था। तो ये साक्ष्य जो है उस समय के लिए काफ़ी पर्याप्त है।